काफ़ी फोकस्ड अप्रोच है विमेन की तरफ। Finance Minister is herself a woman, so expectations are very high from your side and all other women's side. But there are so many other things which needs the focus of the government: infra, agri, education, health, as you mentioned, and some other crucial sectors. So, which sector do you think this government will focus in this particular budget, which is just budget before the elections? See, this being an interim budget, I am not expecting major changes. It depends once we decide whether it's a what the discussions take place. However, the government is already focused. According to me, it's a growth-oriented outlook. They require to balance, then we need a fiscal discipline, and there has to be responsible spending along with revenue generation. So they are looking at infra, they are looking at agriculture, they are looking at startups, they are looking at all areas, manufacturing, Make in India, and PLI schemes, according to me, will be further expanded. And also a different area that I think the government is currently looking at is tourism. They're looking at inbound tourism and domestic tourism, and even spiritual tourism. We have the Prasad scheme. So there are a lot of very interesting things which are growth oriented. Tech and innovation is something which India is excelling in for past many years, and it still needs some more support from the government side. So we see something from the finance minister in this budget about artificial intelligence and other innovations like support to ISRO and other space programs. Definitely, we are looking at implementing a lot of emphasis on digital technology, on AI, blockchain, and also what's more important is we are a young audience. So skilling and upskilling, because we require that for manufacturing, and that is the current focus of India. So overall, will this budget have any implications of elections around the corner? Like I said, it's already, the government is already functioning in a very growth-oriented format. So they will look at fiscal discipline. Thank you. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो संसद पहुंच चुकी है, संसद परिसर में पहुंच चुकी है। कैबिनेट की मीटिंग भी वहां पे चल रही है। जो वोट ऑन अकाउंट है, जिसको कि कह सकते हैं कि एक पूर्णकालिक बजट नहीं होता है, उसको मंजूरी दी जाएगी कैबिनेट की बैठक में। और उसके बाद यानी कि 1 घंटे का इंतजार और है। 11 बजे निर्मला सीतारमण जो है इस बजट को पेश करेंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट के टाइम से टैबलेट में बजट आने लगा। उससे पहले की बात करें तो प्रिंटेड बजट हुआ करता था, जो पहले इंग्लिश में आता था, फिर हिंदी में उसकी कॉपियां आने लगी, और वो जो था संसद के सभी सदस्यों में वितरित किया जाता था एक बार जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पढ़ लेती थी। अभी जो हमने देखा, जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाहर हमने देखा था। उन्होंने रेड कलर का जो बैग था, उसमें क्योंकि टैबलेट रखा होता है जिसमें पूरा बजट जो होता है वो उसमें सम्मिलित होता है, तो वो उसकी तस्वीरें दिखाई। साथ ही साथ जो उनके साथ जो लोग शामिल थे बजट की प्रक्रिया में, उनके साथ एक औपचारिक फोटो सेशन वहां पे देखने को मिला था। और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, निर्मला सीतारमण की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नॉर्थ ब्लॉक फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाहर की ये तस्वीरें हैं। हालांकि अब संसद भवन परिसर में पहुंच चुकी हैं। कैबिनेट की बैठक भी चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं, और 11 बजे का टाइम है जब निर्मला सीतारमण जो है फाइनेंस मिनिस्टर वो बजट पेश करेंगे। हालांकि पूर्णकालिक बजट नहीं है क्योंकि यह चुनावी साल है, साल 2024 में, क्योंकि अप्रैल में बात कही जा रही है कि चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में कोई भी सरकार पूर्णकालिक बजट पेश नहीं करती है। कैसे सरकारी खर्चे चलने हैं, कैसे जो देश का जो खर्चा है वो चलना है, उसको लेकर 3-4 महीनों के लिए जो है वो बजट पेश किया जाता है, जब तक कि नई गवर्नमेंट ना बन जाए। हालांकि हम आपको बता दें कि अगर बजट सेशन की बात करें तो उसकी शुरुआत हो गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमने सुना था, राम के शब्द के साथ उन्होंने उद्घोष अपना जो था वो शुरू किया था। और यह भी कहा, एक कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में भी दिखाई दे रहा था कि उन्होंने कहा कि ये जो बजट आ रहा है ये बजट पूर्णकालिक बजट नहीं है, लेकिन जब हम सरकार में आएंगे तो पूर्णकालिक बजट में बाकी चीजों को भी सम्मिलित करेंगे। तो ज्यादा बड़ी घोषणाएं क्या होंगी, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई बड़ी घोषणाएं लेकर आएंगे, क्योंकि चुनावी साल है, लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती हैं। हमने ये पहले भी देखा है। 2009 की अगर बात करें तो वित्त मंत्री उस वक्त प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे, और जो टैक्स जो रिबेट थी उसको बढ़ाया गया था। 1,10,000 से 1.5 लाख टैक्स रिबेट कर दी गई थी। 2019 की अगर हम बात करें, एनडीए की गवर्नमेंट की बात करें, तो उस समय जब वोट ऑन अकाउंट आया था और यही कहा जाता कि वोट ऑन अकाउंट जो है वो पूर्णकालिक बजट नहीं है, उसमें बड़ी घोषणाएं नहीं कर सकते। लेकिन 2019 भी एक चुनावी साल था, और उस वक्त हमने देखा था कि जो टैक्स की रिबेट थी उसको 5 लाख कर दिया गया था।
किसान सम्मान निधि जो थी वो लाई गई थी, 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि। और सरकार ने यह भी किया था कि जो उसकी पहली किश्त है, क्योंकि अभी भी किसान सम्मान निधि जो है वो किसानों को दी जाती है, 6,000 रुपए वार्षिक तौर पर दी जाती है, 2-2 हजार रुपए की किश्तों में। तो 2,000 रुपए की जो किश्त थी वो सरकार अपने टेन्योर में देकर गई थी। 2019 की हम बात करें, क्या इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है? क्या कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं? टूरिज्म सेक्टर की अगर बात करें, उसके लिए सरकार के पिटारे में क्या है, या सरकार का जो टैबलेट है उसमें क्या है? हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, उसके लिए क्या कुछ नई घोषणाएं हो सकती हैं? क्या कुछ नई बीमा योजना की शुरुआत सरकार कर सकती है? क्या जो टैक्स रिबेट जिसे 7 लाख तक बढ़ाया एनडीए सरकार ने, क्या उसको और बढ़ाया जा सकता है? महिलाओं के लिए इस बजट में क्या आने वाला है? क्या किसान सम्मान निधि में अगर राशि को बढ़ाया जाता है, 6,000 से 9,000 किया जाता है, महिलाओं के लिए क्या कुछ स्पेसिफिक घोषणा जो है निर्मला सीतारमण कर सकती हैं? तो बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब थोड़ी देर के बाद हमें मिलेगा। ये तस्वीरें हम आपको थोड़ी देर पहले की दिखा रहे हैं। बारिश जरूर है, क्या लोक लुभावन घोषणाओं की बारिश होगी? क्या जो आम आदमी है जो कि परेशान है महंगाई से, क्या उस पर कुछ अंकुश लगेगा? ये तमाम जो सवाल हैं इसका जवाब जानने की कोशिश की जाएगी जब निर्मला सीतारमण जो है वो बजट भाषण को पढ़ेंगी। पार्लियामेंट में पहुंच चुकी हैं, कैबिनेट की मीटिंग भी वहां पर चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। और जब जो ये वोट ऑन अकाउंट है इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद गोपाल कृष्ण हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके। सीधा रुख करते हैं गोपाल कृष्ण का। गोपाल, आज एक बहुत ही अहम दिन, क्योंकि वोट एंड अकाउंट जिसे अंतरिम बजट कहा जाता है वो पेश होगा। निर्मला सीतारमण जो है वो पहुंच चुकी हैं पार्लियामेंट और कैबिनेट की वहां पर बैठक भी चल रही है। क्या कुछ आपको लगता है कि आज बजट में आ सकता है? क्योंकि चुनावी साल है, लोक लुभावन घोषणाएं भी हो सकती है और पिछले कई वोट एंड अकाउंट्स में हमने देखा भी है। क्या लग रहा है आपको, क्या किस चीज पर फोकस रहेगा आज बजट का? देखिए, जो अभी तक मैंने एक्सपर्ट से बात की है, खास करके जो अर्थशास्त्री या बाकी जो इसके विशेषज्ञ हैं उनसे, उसके मुताबिक मुख्य तौर पर 4 मुद्दों पर जो है सरकार फोकस करेगी। सबसे पहले युवाओं को लेकर के सरकार फोकस करेगी, महिला पर फोकस करेगी, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन महिला सशक्तिकरण दिखाया गया था, उसके बाद आज के दिन महिला है और खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महिला है, तो महिलाओं पर विशेष तौर पर फोकस रहेगा। उसके बाद से चूंकि चुनावी साल है, अंतरिम बजट है, सरकार बहुत कुछ खुल करके नहीं ये करेगी, क्योंकि जब भी अंतरिम बजट पेश होता है तो वो उसमें ये ध्यान रखा जाता है, क्योंकि सब पता नहीं होता है कि किसकी सरकार जो है वो बनेगी। उसके बाद जब सरकार बनती है तब पूर्ण तौर पर जो है वो बजट पेश किया जाता है। लेकिन आज का जो अंतरिम बजट है वो मुख्य तौर पर आर्थिक देश की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी, युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा और कैसे युवा जो है आगे टेक्निक जो है उनका बढ़ेगा। खास करके हम डिजिटलाइजेशन की बात करें तो उसमें किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, उस पर फोकस होगा। महिलाओं को लेकर के इस पर चर्चा हो सकती है और साथ ही बैंकिंग क्षेत्र को लेकर के भी विशेष तौर पर इसमें चर्चा हो सकती है। अगर हम इनकम टैक्स स्लैब की बात करें तो इस पर कुछ खास मिलने वाला नहीं है, लेकिन हाँ जरूर जो है पीएफ और बाकी चीजों को लेकर के भी ध्यान में रखा जाएगा। रेलवे को लेकर के कुछ घोषणाएं हो सकती है। तो तमाम ऐसे अहम गोपाल, चुनावी साल है, वोट ऑन अकाउंट में आप पूर्णकालिक बजट की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये इसमें 3-4 महीने का ही आपको बजट देना होता है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राम राज्य जय सिया राम की बात करी, राम राज्य की कल्पना की जा रही है, एक पॉपुलिस्ट बजट जिसे कहा जाता है, क्योंकि हमने 2019 में देखा है, यही एनडीए की सरकार थी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे और हमने देखा 3 योजनाएं उस वक्त लेकर आए थे। टैक्स रिबेट 5 लाख तक कर दी गई थी, किसान सम्मान निधि जो थी 6,000 रुपए की जो वार्षिक आय थी वो घोषित कर दी गई थी किसानों के लिए। तो कई घोषणाएं की थी। तो क्या चुनावी वर्ष को देखते हुए क्या कुछ ऐसा पॉपुलिस्ट कुछ चीज ऐसी ला सकती है सरकार जिसको आम जनमानस जो है वो उसको ग्रहण करे और बड़ा खुश भी हो कि हाँ ये चीज सरकार हमें देके जा रही है और इसलिए हमें सरकार को वोट करना चाहिए? बिल्कुल ला सकती है। आपने सही कहा कि किसानों को लेकर के पिछली बार 2019 में सरकार ने जो पॉलिसी लाई थी उसी तरीके से किसानों पर भी इस बार भी फोकस होगा, क्योंकि किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। किसान ऐसे भी एमएसपी को लेकर के नाराज चल रहे हैं और एमएसपी लागू नहीं होने को लेकर के एक बार पुनः जो है वो धमकी दे रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए। तो इन सब तमाम चीजों को देखते हुए सरकार किसानों पर भी फोकस कर सकती है और कैसे वोट बैंक को तब्दील किया जाए
इसको लेकर के सरकार जो है, इसका मुख्य सरकार का फोकस होगा कि किस तरीके से हम अंतरिम बजट पेश करें ताकि जनता को अधिक से अधिक फायदा हो और वो फायदा जो है वोट बैंक में कन्वर्ट हो सके। तो सरकार का यही जो है फोकस रहेगा। चूंकि निर्मला सीतारमन पहुंच चुकी है, परंपरा होती है कि जब भी लोक संसद में बजट पेश होता है तो उसे पेश करने से पहले जो वित्त मंत्री होती हैं वो राष्ट्रपति से मुलाकात करती हैं और राष्ट्रपति जो है उनको अनुमति देती हैं और अनुमति देने के बाद जो है वो पटल पर रखा जाता है और उसके बाद से निर्मला सीतारमन जो है वो बजट को पढ़ना शुरू करती हैं। तो अब जैसे ही निर्मला सीतारमन बजट पढ़ना शुरू करेंगी तो देखना होगा कि उनके पिटारे से क्या कुछ निकल करके सामने आता है। गोपाल, एक सरकार के ऊपर एक बड़ा आरोप विपक्षी पार्टियां हमेशा लगाती रही हैं और वह रोजगार सृजन को लेकर। हालांकि सरकार कहती है हमने इतने रोजगार दिए, लेकिन आप कोई भी डिबेट शो देख लीजिए उसमें एक बड़ा मुद्दा रहता है रोजगार को लेकर। क्या बजट में इसकी झलक दिखाई देगी? देखिए, सरकार की तरफ से जरूर इस पर जो है फोकस हो सकता है क्योंकि सरकार स्वयं आत्मनिर्भर बनने की बात करती है। सरकार अलग अलग तरीके से लोन देती है और कहती है कि आप जो है बिजनेस शुरू कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए, खुद जो है अपना बिजनेस शुरू करके और लोगों को नौकरी दीजिए। तो खास करके सरकार का जो फोकस रहा है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ रहा है और प्राइवेट सेक्टर में अधिकतर लोगों को नौकरियां मिली है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका आरोप है कि सरकारी नौकरियां जो है वो दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है, जो नहीं होनी चाहिए, जिसके चलते युवा जो है बहुत ज्यादा संख्या में बेरोजगार पड़े हुए हैं। हालांकि मैंने शास्त्री से भी बात किया, उन्होंने कहा कि जो आज का बेरोजगारी का जो दर है वो अगर देखा जाए तो बिल्कुल कम है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी का दर नहीं है क्योंकि जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में है और अच्छे जगहों पर काम कर रहे हैं, अच्छी शैली पर काम कर रहे हैं और सरकार का भी इस पर फोकस रहेगा कि कैसे हम जो है कंपनियों को आगे बढ़ाएं ताकि युवाओं को वहां पर नौकरी मिल सके। गोपाल कृष्ण, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। इस बीच स्टूडियो में हमें खास मेहमान ने ज्वाइन कर लिया है, लाल बहादुर सिंह, जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका सहारा समय पर। सर, वैसे तो देखा जाए तो ये वोट ऑन अकाउंट है, कोई पूर्णकालिक बजट नहीं आ रहा है, फिर भी क्या दिशा निर्देश, क्या गाइडलाइन, क्या हम देख सकते हैं इस बजट में जो फोकस पे रहेगा? देखिए, ऐसा है कि ये माना जा रहा है कि पूर्णकालिक बजट नहीं है, ये केवल एक प्रकार से अंतरिम बजट है। लेकिन इस बजट से आने वाले बजट का एक दिशा निर्देश जो है तय हो जाएगा कि किस तरीके का बजट आएगा जी। और मैं जहां तक समझता हूं कि इस बजट में जो बजट पेश किया जा रहा है, इसमें आने वाले बजट के अलावा रोजगार के साधन, औद्योगिकरण, मूलभूत सुविधाएं, बुनियादी ढांचा, इन सब पे फोकस इस बजट में होना चाहिए। आपको लग रहा है कि चुनावी वर्ष है, कुछ लोक लुभावन घोषणा भी सरकार कर सकती है? हाँ, निश्चित रूप से होगा। मैं समझता हूं कि किसानों का जो सम्मान निधि है सबसे पहले वो बढ़ाया जाएगा, 6 से 9 हजार कर देंगे। 6 से 9 हजार होना तय है जी। और उसके अलावा जो उद्योगों के लिए कुछ सब्सिडी, इनको मैं जहां तक समझता हूं, औद्योगिक एक मैं उद्यमी भी हूं और उस हिसाब से उद्योगों के लिए भी इनको सब्सिडी आज जो है देना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि चूंकि ये बजट एक ऐसा बजट है जो चुनाव के पहले आ रहा है, तो इसमें पूरी तरह चुनाव की बातें जो है इसमें इंगित रहेगी और मतलब लोक लुभावन घोषणाएं जो हैं उस तरीके का कुछ बजट हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मिलेगा, लोक लुभावन बजट ही मिलेगा क्योंकि इसमें सरकार ये अपनी नीति तय करेगी, अपने एक दिशा निर्देश तय करेगी कि आने वाले समय में हम देश को बहुत आगे तक ले जाने का प्रयास करेंगे। इस तरीके का बजट ये होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात की जाए तो सर काफी नाराजगी हमने देखी बीते सालों में, तो किसानों ने आंदोलन भी किया। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या आ सकता है इस बजट में, क्या फोकस कर सकती है निर्मला सीतारमण? देखिए, ये देश किसानों का देश है, किसान प्रधान देश है और जो सम्मान निधि इन्होंने दी है उससे गरीब किसानों को, गरीब तबके जो किसान हैं उनके लिए बहुत सहारा है। लेकिन जैसे किसानों के लिए तमाम ऐसी सुविधाएं दी जाए, जैसे खाद्य सब्सिडी है जो है अभी भी है, लेकिन खाद्य सब्सिडी और खाद्य की आपूर्ति जी, ये दोनों सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और किसानों के लिए खास करके उनके जो एमएसपी है जिसके लिए मांग की जा रही है हमेशा, एमएसपी की जो सीमा है
जी। उसको इनको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि किसान 12 महीने काम करने के बाद उसके हाथ कुछ आता नहीं। हालांकि जो कृषि नीति आई थी जिसका विरोध किसानों ने किया, उसको अगर देखा जाए तो वो किसानों के लिए बड़ा हितकर था और किसान उससे ज़्यादा समृद्ध होता। सरकार समझा नहीं पाई लगता है लेकिन किसानों को। नहीं, सरकार नहीं समझा पाई, किसानों को समझा नहीं पाई, और कुछ जो है इसमें राजनीतिक अड़ियलपन लोगों का रहा। अगर देखा जाए तो कृषि नीति जो लेके सरकार आई थी किसानों के हित में था, क्योंकि मैं एक किसान भी हूँ जी। और हमारे घर के लोग अनाज बेचते भी हैं, तो उसमें जो है किसानों के लिए बहुत बढ़िया चीज थी। आज जो आढ़तियों के चक्कर में फंसे हुए हैं सब हैं, वो कम से कम अपने खाद्यान्न सब्सिडी की अगर सर बात करें तो 2014-15 में 1,17,000 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी थी, जो इस सरकार में बढ़ी है। अगर हम एनडीए के कार्यकाल की बात करें तो 1,97,000 करोड़ तक बढ़ी है। देखिए, खाद्य सब्सिडी तो सरकार को और बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है, लोक लुभावन बजट है और खाद्य सब्सिडी से लोगों को राहत भी मिल रही है। अब आप देखिए 80 करोड़ लोग जो है जी मुफ्त में जो है अनाज सरकार दे रही है। 5 साल के लिए और बढ़ा दिया 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है, तो इससे जो गरीब तबका गांव का है ना, उनको इसके लिए बहुत राहत मिली है। आप समझ सकते हैं कि जो गरीब 2 जून की रोटी कमाने में उसको बड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन खाद्य सब्सिडी के जरिए ये जो मुफ्त अनाज मिल रहा है, इसके जरिए उनका जीवन यापन ठीक ठाक हो रहा है। हालांकि ये देश के विकास के लिए अच्छा नहीं है, मुफ्त की रेवड़ियां बांटना अच्छा नहीं है। वही सरकार कुछ दूसरी सरकारों पे आरोप लगाती है कि आप मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, फिर वही सरकार जो है सब्सिडी के जरिए पैसा करती है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपका जो राजकोषीय घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नहीं, निश्चित बढ़ेगा। अब आप देखिए ना, चुनाव जीतने के लिए पार्टियों में होड़ है मुफ्त बांटने की जी। अब आज दिल्ली में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, या कर्नाटका में देख लीजिए, जहां इन्होंने तमाम घोषणाएं करी थी, तमाम बातें कही थी कि हम जो है ये 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, या सब कुछ पानी फ्री देंगे, या हम 5 किलो चावल या 20 किलो चावल कर्नाटका में जैसे था कि हम फ्री देंगे। एक चीज़ बताइए, अगर सब कुछ फ्री ही बटेगा तो उस प्रदेश का विकास कैसे होगा? आज पंजाब की हालत खराब होती जा रही है, दिल्ली की हालत खराब होती जा रही है, कर्नाटका में तो यहाँ तक लोग मान रहे हैं कि चुनाव के बाद जो भी घोषणाएं इन्होंने मुफ्त बांटने की उसे वापस ले लेंगे, क्योंकि बुनियादी ढांचा के लिए इनके पास पैसे नहीं है। सड़क है, तमाम चीजें ये दोनों तरफ से है, ये सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं है, ये राज्य सरकार की भी बात है। राज्य सरकार भी रेवड़ियां बांट रही है, सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसा चल रहा है, और जो फिस्कल डिफिसिट जिसे कहा जाता है, यानी कि राजकोषीय घाटा, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, चाहे हम हर टेन्योर की बात करें, हर फाइनेंशियल ईयर की बात करें। अभी और बढ़ेगा। इसी तरह से अगर मुफ्त जो है बांटते रहे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इस पे इनको लगाम लगाना पड़ेगा। अगर लगाम नहीं लगाते तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। हालांकि भारत एक बहुत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है दुनिया के आगे, लेकिन कहीं भी मुफ्त बांटने का जो है, पूरे दुनिया में मुफ्त बांटने का कहीं आंकड़े बता रहे हैं 173 लाख करोड़ का कर्ज है, जो कि आपकी जीडीपी का 81% है। इतने कर्ज में डूबे हैं आप। आज मैं बता दूं, आज मैं कहीं पढ़ रहा था जी कि अगर इसी तरीके से मुफ्त रेवड़ियां बांटी गई तो ये जीडीपी का 100% कर्ज में आ जाएगी। बिल्कुल, आईएमएफ ने सचेत भी किया भारत को। 100% आ जाएगी। अगर 100% आ गई तो आप देखो कि दक्षिण अफ्रीका के कई कंट्री मुफ्त बांट करके आज जो है कंगाली के कगार पे खड़े हुए हैं। तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि यहां भी यही स्थिति का सामना करना पड़ेगा, और सरकार को इसके लिए सचेत रहना पड़ेगा। बिल्कुल रहना पड़ेगा। और बजट में जो है, जो अंतरिम बजट है, इसमें सरकार लोक लुभावनी घोषणाएं न करके जो देश के लिए जरूरी है, बुनियादी ढांचा से लेकर के औद्योगिकरण से लेकर के कृषि से लेकर के सब पे इनको ऐसा एक अपना नजरिया बनाना चाहिए जिससे जो है देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे रहे। कर्ज लेकर के घी पीने से कोई फायदा नहीं है। अगर कर्ज लेके घी पीना है तो तमाम सरकारें हैं जो कर्ज ले रही हैं। आप स्टेट की सरकारों के ऊपर देखो ना, हर स्टेट की कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, वो रीपेमेंट करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे बहुत दिन तक नहीं चलेगा। एक बड़ा सवाल सर ये भी उठता है, जो बजट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया की इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइस राइज। इतना ज्यादा हाइक हुआ है कि कोई भी सेक्टर उठा के हम देख लीजिए। आप एक स्कूटी लेने जाते थे जो शायद आज से 5-7 साल पहले 70,000 की मिलती थी, वो आज 1.25 लाख की हो गई है। चाहे आप रिफाइंड ऑयल की बात कर लीजिए, मस्टर्ड ऑयल की बात कर लीजिए, जो घरेलू सामान की चीजें,
प्राइस हाइक पे कोई कंट्रोल जो है पिछले कुछ सालों में हमने देखा नहीं। और हर सेक्टर की आप बात कर लीजिए, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर लीजिए, टू व्हीलर सेक्टर की बात कर लीजिए, जनरल स्टोर की बात कर लीजिए, रिटेल सेक्टर की बात कर लीजिए, प्राइस हाइक लगातार होता आया, उसमें कोई कमी नजर नहीं आई। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज से अगर 10 साल पीछे आप चले जाओ तो बहुत वस्तुएं ऐसी थी जो बहुत सस्ती थी, आम आदमी के पहुंच में थी, उसको खरीदता था वो। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज आप सही कह रहे हो, चाहे मस्टर्ड ऑयल है, हम कहते हैं मस्टर्ड ऑयल के अलावा और कोई चीजें ऐसी है जो घरों में रोज प्रयोग, मसाले हैं, इनमें पूरे रिटेल सेक्टर हो गया। रिटेल सेक्टर, हाँ। पूरा रिटेल सेक्टर, इस पे सरकार जो है कुछ ऐसी नीति बनाए कि एक सीमा तक प्राइस को बढ़ाया जा सकता है। आज स्थिति ये है कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख लीजिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1.25 लाख रुपया की स्कूटी, 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपया की मोटरसाइकिल जो 35, 40, 50 हजार रुपया की मिला करती थी, जिससे एक आदमी उसे लेकर के अपना चल सकता था। लेकिन आज स्थिति क्या है? 1.5 लाख रुपए का मोबाइल, 50 लाख की गाड़ियां, ये इतनी तेजी से रेट बढ़े, उसका रीजन है उसमें प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल जी बहुत तेजी से बढ़ा है। आप आयरन स्टील को देख लीजिए, आप एल्युमिनियम को देख लीजिए, आप कॉपर को देख लीजिए, पिछले 5 सालों में 2 गुना रेट इनके हो गए हैं। इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर पा रही है क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ जा रही है। अच्छा, कई घराने ऐसे हैं जिन्होंने कैप्चर कर रखा है, जैसे आयरन स्टील पे सारी पुरानी कंपनियां सब चली गई, कोई बिक गई, कोई सरकार ने अधिकृत कर लिया, किसी ने जो है जैसे टाटा ने या जिंदल ने ले लिया। अब इन्होंने क्या किया, एक कार्टेल बना रखा, जब चाहते रेट बढ़ा देते हैं, डिमांड कम हुई रेट घटा दिया। तो जब रेट बढ़ेंगे, कच्चे माल का रेट बढ़ेगा, उसमें प्रयुक्त होने वाले सामान का रेट बढ़ेगा, निश्चित रूप से प्राइस बढ़ेगा। गोपाल कृष्ण हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल कृष्ण, एक पेट्रोल और डीजल के दामों की अगर बात की जाए, क्योंकि काफी समय से यह बात हो रही है कि प्रधानमंत्री या सरकार जो है 10 रुपए कम कर सकते हैं, इसमें हमने यूपीए गवर्नमेंट में भी देखा था, 50 रुपए का पेट्रोल गया था तो फिर 10 रुपए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई थी, 10 रुपए कम किया था, 5 के रेट में किया था, 50 से 45 आया, 45 से फिर 40 में चला गया। क्या इस तरीके का भी कुछ बजट में हमें नजर आ सकता है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, जो कि कई प्रदेशों में अगर हम बात करें 3 डिजिट में, 100 रुपए से ऊपर है, उसको 2 डिजिट में लाना। दिल्ली की बात करें तो कल की अगर रेट की बात करें तो 96 रुपए 72 पैसे था, और नोएडा की भी हम बात करें तो वहां भी 100 के अंदर है। लेकिन कुछ प्रदेश, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 100 के ऊपर पेट्रोल है। जी बिल्कुल, सरकार का इस पर भी फोकस हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल एक ऐसा चीज है जिसको लेकर के लगातार जो है मुद्दा बनाया जाता है, और लगातार जो है इसकी जो दर है वो बढ़ता रहा है। सरकार इस पर लगाम नहीं लगा पा रही है। तो इस सत्र में चूंकि चुनावी साल है तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जो है इसे कम कर सकती है, लेकिन इसके साथ ही जो घरेलू गैस है उस पर भी कमी देखने को मिल सकती है, उसको लेकर के भी ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो गरीब महिलाएं हैं जिन्हें सिलेंडर दिया गया है 3 किलो 4 किलो का, तो अगर महंगा होगा तो गैस नहीं भरवा पाएंगी, तो उस पर भी सरकार का ये फोकस होगा। यानी कि पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस की जो दाम है उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महंगाई चरम सीमा पर है, चुनावी साल है, तो आम आदमी को जो है लुभाने के लिए उसे कम किया जा सकता है, उसे जो है बताया जा सकता है कि इन चीज़ों पर सामान इन चीज़ों पर जो है दर घटा दिया गया है, सब्सिडी घटाई जा सकती है, टैक्स को कम किया जा सकता है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सरकार इस पर फोकस कर सकती है, क्योंकि सरकार को पता है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो लगातार विपक्षी पार्टियां उठाती रही है। तो सरकार इन दोनों मुद्दों पर विशेष तौर पर फोकस करने जा रही है। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे पेट्रोलियम सेक्टर की अगर हम बात करें, चाहे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस की बात करें, एक जगह पे आया प्राइस, उसके बाद नीचे नहीं हुआ, चाहे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बहुत धरातल पर भी गई, बहुत नीचे भी गई, लेकिन सरकार ने पेट्रोलियम प्राइसेस, सरकार कहती है कि हमने तो पेट्रोलियम कंपनी को दे रखा है, वो पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, वो डीजल की कम करेंगे, लेकिन एक्साइज ड्यूटी तो सरकार के हाथों में है। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बात कर रहे थे कि रसोई गैस का सिलेंडर, उज्ज्वला योजना आपने लॉन्च की, उसमें भी क्या आप देख रहे हैं कि कुछ सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है, कुछ और रिबेट उसमें? देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब तक जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा तब तक ये कम नहीं होगा। जब तक राज्य सरकारों के हाथ में इसका निर्धारण रहेगा तब तक जो है
नीचे नहीं आएगा। राज्य सरकार अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए पेट्रोल पे वैट बढ़ा देती है। जब देश में जीएसटी लागू है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा सकता? जीएसटी के दायरे में ले आए, उस पर 18% लगाएं, 28% लगाएं, जो भी लगाना हो लगाएं, लेकिन उन राज्य सरकारों के हाथ से वो बात तो जाएगी जो जब चाहते हैं तो उस पर 3% वैट बढ़ा देते हैं। आप राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है पूरे देश से मुझे लगता है महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में ही महंगा है। महाराष्ट्र में जबकि पोर्ट्स हैं, महाराष्ट्र में तो खुद आता है शिप के थ्रू, लेकिन वहां पर भी पेट्रोल के प्राइस सबसे ज्यादा रहते हैं। भाई इसलिए तो ज्यादा रहता है कि वैट जो है राज्य सरकार के हाथ में है पेट्रोलियम प्रोडक्ट बढ़ाना। वो जब चाहते 1% बढ़ाया, फिर अगले 2 महीने में बाद 2% बढ़ा दिया। अब जैसे हिमाचल सरकार थी जी, हिमाचल सरकार ये जो है वादा करके आई कि हम पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार बनते ही 3 रुपया पेट्रोल की कीमत पे उस पर वैट बढ़ा करके बढ़ा दिया। घटाने की बात करी थी, घटाने की बात बढ़ा करी दिया। थी। अब आइए जो है भारत सरकार पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो एक्साइज लग रही है, उस एक्साइज को सरकार कम से कम कर दे, जिसकी वजह से 8 से 10 रुपया नीचे पेट्रोलियम आप प्रोडक्ट देख पा रहे हैं ये बजट में हो सकता है इस बार, क्योंकि बहुत टाइम से बात हो रही है, बहुत टाइम से मांग हो रही है। विपक्षी पार्टियों ने कई बार हल्ला भी बोला सदन में कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल जो है उसकी कीमतें गिर रही हैं, लेकिन सरकार ने कोई कमी नहीं की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। देखिए, सरकार को इस बजट में मुझे जहां तक पूरी उम्मीद है कि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी घटाएगी। अगर एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि चुनावी वर्ष है, ये माना जा रहा था, जब आप ध्यान दो कि जब विधानसभा के चुनाव होने वाले थे तब 10 रुपया घटा दिया गया था, जो 100 कुछ रुपए हो गया था, 10 रुपये घटा दिया गया था। उसके बाद से निरंतर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल कम हुआ है जी। और अभी पीछे तो सरकार ने रसिया से बहुत सस्ते दर पर तेल खरीदा है। बिल्कुल। तो उसका जो है बेनिफिट जो है इनको कंज्यूमर को देना चाहिए, जो नहीं दे रहे हैं। और सरकार अगर इसमें कुछ कटौती करती है तो इन जो है, मैं मान के चलता हूं कटौती होगी, इसलिए कटौती होगी कि चुनाव 2 महीने बाद है जी, 2 महीने बाद चुनाव है, और मैं समझता हूं कि फरवरी में चुनाव का सूचना जारी हो जाएगी, तो सरकार के हाथ कट जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें 10 से 15 रुपया की जो है प्राइस में कटौती निश्चित रूप से होगी, होना चाहिए और होगी भी। वसीम हैदर हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए, और मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है इंडिया की। वसीम, वहां पर क्या जो कारोबारी हैं जिनके साथ आपकी बात हुई होगी, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस अंतरिम बजट से? ये कारोबारियों की अगर बात की जाए तो पता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ना तो ऊपर जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत रिलीफ मिलेगी नहीं तो उसके बाद जो आने कारोबारी से लगातार इनकम टैक्स को लेकर जो स्लैब को इनकम टैक्स स्लैब को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, क्योंकि इनकम टैक्स है वो अपने आप में बहुत। वसीम, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत है, आपसे जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। गोपाल कृष्ण हमारे जो सहयोगी है वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। गोपाल कृष्ण, जैसा कि अभी वसीम हैदर भी बात कर रहे थे, टैक्स रिबेट ऑलरेडी सरकार कह रही है। 2009 में हमने देखा था जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, 1,10,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख किया गया था, तब भी वोट ऑन अकाउंट था, चुनावी वर्ष था। 2019 में अगर आए तो 2019 में भी आप जानते हैं कि टैक्स रिबेट को 5 लाख तक कर दिया गया था, फिर 7 लाख तक इसको बढ़ाया गया। क्या लग रहा है, क्या इसकी कुछ घोषणा कर सकती है निर्मला सीतारमण? गोपाल कृष्ण, देखिए, जो एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक टैक्स को लेकर के बहुत कुछ सरकार नहीं करने जा रही है, क्योंकि सरकार का मेन फोकस होगा कि हम किस तरीके से जो आम जनता है, जो गांव तक जो चीज़ें हैं जहां पहुंच रही हैं, उसको हम जो है इसमें शामिल करें, जिससे वो वोट बैंक में कन्वर्ट हो सके। सरकार का फोकस इस पर रहेगा। टैक्स पर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस सरकार का इस पर खास करके नहीं होने जा रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो स्लैब की जहाँ तक बात होती है, हर साल जो है उम्मीदें लगाया जाता है कि शायद इस बार स्लैब में कुछ बदलाव होगा। और पिछले साल देखने को मिला था जब निर्मला सीतारमण ने 5वीं अपना बजट पेश किया था, तो उसमें देखने को मिला भी था। लेकिन इस बार एक्सपर्ट के माने तो इस बार शायद मुश्किल होगा कि टैक्स को लेकर के कोई घोषणा हो सकती है। एनपीएस को लेकर के जरूर कुछ बातें हो सकती है, जैसे कि पहले से ही पेपर में इस तरीके की खबरें आ रही है कि उसमें कुछ जो है बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि लगातार जो है पुरानी जो स्कीमें हैं उसको लागू करने की मांग जो है विपक्षी पार्टियां करती रही है, और वो आरोप लगाती रही है कि एनपीएस से बहुत ज़्यादा फायदा जो सरकारी नौकरी वाले हैं उन्हें नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि सरकार जो है एनपीएस में बदलाव करके
जो है इसे और बेहतर करे, इसकी उम्मीदें लगाई जा सकती है। सर आपको क्या लग रहा है कि अब टैक्स की रिबेट है या स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको बढ़ाया जा सकता है? क्या आपको लग रहा है कि इस बार सरकार की पॉलिसी रहने वाली है और देखिए, निर्मला सीतारमण सोच रही होंगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन को तो पिछले बजट में इन्होंने कम करने की बात कही थी, जब दो टाइप के इनकम टैक्स रिटर्न दोनों स्लैब बनाए, न्यू दोनों स्लैब, दोनों हाँ जी। स्लैब बनाए, तो एक स्लैब में सारे डिडक्शन इन्होंने खत्म कर दिए जी और दूसरे में वही जो पुराना डिडक्शन चल रहा था कि हाउसिंग पे इतना और LIC मिला के 1.5 लाख रुपए जो टोटल मिला करके था, जी। उसको इन्होंने नहीं बढ़ाया था तब भी। देखिए, इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन हाल हाल में थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहिए। जी अगर जो है ढांचागत विकास हो रहा है देश का और उसमें लोग अपना मकान बना रहे हैं, उस पर हाउसिंग लोन ले रहे हैं, इन सब चीज़ों पे उनको कम करना चाहिए, लेकिन सरकार मैं नहीं समझता इस पे कुछ करेगी, न ही स्लैब जो है बढ़ाएगी। यानी कि आगे अगर सरकार बनती है तो उसके लिए छोड़ देगी। वसीम हैदर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। वसीम, हम देख रहे हैं काफी पॉजिटिव माहौल कुछ दिनों से हम देख रहे हैं शेयर मार्केट की अगर बात करें कि काफी ज्यादा जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। क्या हलचल मुंबई में? देखिए, शेयर मार्केट बिल्कुल बुली है। सरकारी कंपनियां हैं, बिल्कुल आग लगी हुई है। सरकारी देख लीजिए, बिल्कुल आग लगी हुई। पिछले एक साल लगातार जो सरकारी कंपनी यदि 2 से 3 गुना नॉर्मल कर रही है, 5 शेयर बाजार में आग लगी हुई। बहुत जब ये रिजल्ट आया था कि 5 राज्यों का, उसके बाद सरकारी कंपनियां और साथ ही साथ शेयर बाजार नीचे आने का नाम है। 22,000 तक सकता है निफ्टी, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए इसकी सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स लगातार जो है ऊपर छलांग। वसीम एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है साउंड को लेकर, लेकिन कुछ विशेषज्ञ जो है वो अपनी राय दे रहे हैं बजट को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। आज मैं उम्मीद कर रहा हूं कि खास करके जो होम लोन के ऊपर मिलने वाली जो छूट है, जिसे हम CLS स्कीम कहते थे, 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल में वो हमें मिलती थी, जो बायर को मिलती थी, वो मुझे लगता है आज फिर से रिस्टोर होनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात कि इंडस्ट्री का स्टेटस बहुत टाइम से पेंडिंग है रियल एस्टेट को, मुझे लगता है वो मिलना चाहिए, जिससे इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह सोचा जाना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है। एंड ऑफ कोर्स लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ और मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि जो होम लोन के ऊपर, जो होम लोन इंटरेस्ट है, उसके ऊपर 2 लाख रुपए का एक रिबेट मिलता है। उस 2 लाख रुपए के रिबेट को मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए। और आज वैसे वित्त मंत्री जी के पिटारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर रियल एस्टेट की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो मुझे लगता है शायद कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी चीज़ें निकलेंगी जिससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक अगले आने वाले टाइम के लिए दिशा मिलेगी। अगर आपने इंटरिम बजट बोला तो प्रावधान है, क्योंकि इंटरिम बजट में डिस्कशन होता है। अगर ये बजट वोट ऑफ अकाउंट बजट है तो वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होगा। अभी देखते हैं कि वित्त मंत्री के पटारे से क्या निकलता है, लेकिन हमें इतनी उम्मीद नहीं, इंडस्ट्री को इतनी उम्मीद नहीं है कि इस बजट में कुछ खास प्रावधान होंगे। और ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जनरली चुनाव के पहले जो बजट होता है पॉपुलिस्ट बजट होता है, और जिस तरह से वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि ये एक वोट ऑफ अकाउंट बजट होगा, एक रीअश्योरिंग है कि कोई पॉपुलिस्ट मेजर नहीं होगा। वो दैट इटसेल्फ इज़ ए गुड थिंग। जहां तक बात है उसको थोड़ा सा फायदा पहुंचना चाहिए। सर अगर मैं आपसे पूछूं 3 प्रभावी कदम इस बजट में क्या उठाए जाने चाहिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये 3 कदम जरूर उठाए जाने चाहिए वित्त मंत्री के द्वारा? देखो, पहला तो जैसे आपने सुना, होम लोन पे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, जो भी 2 लाख रुपए का मिलता था, उसे 5 लाख होना ही चाहिए। क्योंकि आज जो मकान आज से 2 साल पहले 40-50 लाख का मिलता था, अब वो 1 करोड़ रुपया हो गया है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का 6.5% 7% था, अब वो बढ़ के 8.5 से 9% हो गया है। तो इसका भार तो उपभोक्ता पे पड़ ही रहा है। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख सरकार को करना चाहिए, और जब तक ये नहीं करेंगे तो आने सरकार की एक बहुत बड़ी मंशा है कि सबको अपना छत हो। सबको छत कैसे मिलेगा?
सबको छत तो लोन लेके ही प्रधानमंत्री मिलेगा। आवास योजना भी तो चल रही है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना है वो गरीबों के लिए है, लेकिन जो मिडिल मिडिल क्लास की आप बात मिडिल करें, क्लास की बात मैं कर रहा हूँ। मिडिल क्लास के लोग जो अपना मकान खुद बनाना चाहते हैं, वो नौकरी पेशे के लोग जो 40-50 हजार 30 हजार रुपया किराया देते हैं, वो अगर अपना छोटा मकान लेकर के बैंक से लोन लेकर के और उसके रीपेमेंट कर रहे और इसकी हैं, संख्या काफी बड़ी है। बहुत है। होम लोन वालों की संख्या काफी बड़ी है। बहुत बड़ी है जी। पिछले 2 सालों में जिस तरीके से रियल एस्टेट में बूम आया है, उसमें तो बहुत तेजी से बढ़ी है होम लोन लेने की वो। और आप इसमें लिए दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि सरकार को कम से कम पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे 10 से 15 रुपया का रिलीफ मिलना ही चाहिए। अगर देखिए आज क्रूड ऑयल काफी नीचे है जी। तो उस स्थिति में सरकार जो है, जब सरकार रेट बढ़ाती है जब क्रूड ऑयल महंगा होता है, तो आज जब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, कच्चा तेल सस्ता हुआ है, तो रेट घटाने में इन्हें दिक्कत क्या है? बिल्कुल, इनको रेट घटाना चाहिए। और जब तक रेट नहीं घटाएंगे, हालांकि मैं समझता हूं कि इस बार जरूर घटेगा क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में सरकार ऐसे ऐसे तमाम वादे करती है जिससे जनता प्रभावित हो। और चूंकि देश की जनता 90 रुपया, 95 रुपया, 97 रुपया, 100 रुपया लीटर तक पेट्रोल खरीदने के आदी हो गई है जी। अब जैसे 10 रुपया घटेगा उसको लगेगा कि हमें तो बहुत बड़ी रिलीफ मिल गई और एक पॉजिटिव वाइब्स भी जाएगी, पॉजिटिव वाइज जाएगी। वो लोग सोचेंगे सरकार जो है हमारे लिए बिल्कुल काम कर रही है, हमारे लिए कृत संकल्प है, हमारे विकास के लिए कृत संकल्प है, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा और सरकार को ये करना भी चाहिए। बिल्कुल। वसीम हैदर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिर से उनका रुख करते हैं एक बार। वसीम, क्या हलचल वहां पे देखने को मिल रही है फाइनेंशियल कैपिटल में? और जैसा कि हम बात करें कि शेयर बाजार की हम बात करें, लगातार पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। शेयर बाजार की अगर बात सबसे पहले करते हैं, शेयर बाजार पिछले कुछ दिनों से इतना पॉजिटिव है कि एक आग लगी हुई है और खासतौर से सरकारी कंपनियों में आग लगी हुई है। पिछले 1 साल का देखा, LIC का शेयर देख लीजिए, कल कितना बूम कर गया LIC का शेयर। आप LIC आप बताइए, सारे शेयरों में आप सरकारी कंपनियां कुछ भी देख लीजिए, एनर्जी की कंपनियां देख लीजिए, आप कंस्ट्रक्शन कंपनियां देख लीजिए, आप डिफेंस, अडानी के शेयर सारे ग्रीन हो गए, रेड से ग्रीन हो गए पिछले कुछ हफ्तों में ही। जो सारे शेयर डूबे हुए थे अडानी के, वो भी रेड से ग्रीन हो गए। जी, सबसे ज्यादा तो रेलवे ने आग लगा के रखा है शेयर बाजार में। रेलवे सेक्टर जो है इस वक्त बिल्कुल IRCTC, IRFC, जी, IRFC, आप जो RVNL, REITs, आप जो कंपनियों को देखिए शेयर बाजार में खड़ी, जो सरकारी कंपनियां हैं, जब से मोदी जी ने कहा था कि सरकारी कंपनियां आग बंद करके आप लीजिए, तो एकदम आग लगी थी। सरकार पे पूरा भरोसा बाजार को इस वक्त है और सबसे ज्यादा जो रियल एस्टेट के लोग हैं उनको भरोसा है कि सरकार इस वक्त कुछ पॉजिटिव देगी। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी बाजार जब खुला तो वो भी ऊपर खुला है, अप पे खुला है, जबकि लोग वेट करते हैं कि क्या आएगा बजट में, उसके बाद देखते हैं, लेकिन आज भी अप खुला है। तो एकदम बहुत पॉजिटिव माहौल बाजार का है। जहां तक बात की जाए कंपनियों की, तो कंपनियां भी इस वक्त बहुत सबके सब ग्रीन में। दूसरी चीज जो छोटे बिजनेसमैन है वो थोड़े से ये है कि उनको GST में कुछ रिलीफ मिल जाए, अगर जाते जाते कुछ सरकार अगर चुनाव से पहले GST में कुछ रिलीफ दे दे तो कुछ फायदा हो जाएगा। और इनकम टैक्स में तो सभी चाहते हैं कुछ ना कुछ हो ही जाए, ये चीजें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि माहौल बिल्कुल खुशगवार है और थोड़ी सी उम्मीद रखे हुए सरकार के बजट से पहले कुछ दे दे चुनाव से पहले, तो एक पॉजिटिव और मिलेगा। जी, गोपाल कृष्ण के पास एक बार फिर से चलते हैं। गोपाल कृष्ण, अगर कुछ सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा की हम बात कर लें, 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं मनरेगा में। आयुष्मान भारत की बात की जाए 7,200 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन की बात की जाए 70,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। PM आवास योजना की अगर बात की जाए तो 80,590 करोड़, मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं। और स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाए तो 12,192 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। आपको लग रहा है इनमें से कुछ और योजनाएं हैं जिसमें कि और इन्वेस्टमेंट सरकार कर सकती है इस बजट में, जिसकी झलक दिख सकती है, स्पेशली अगर मनरेगा की बात भी हम करें तो? देखिए, मनरेगा में जो बजट का प्रावधान था उसमें हो सकता है कि सरकार जो है उसको उसमें कुछ और जो है ऐड करे और उसको बढ़ाए और ज़्यादा फंड दे, ताकि अधिक से अधिक जो है लोगों को रोजगार मिल सके। जो गांव में है खास करके उन्हें रोजगार मिल सके, जो 2 जून की रोटी नहीं कमा सकते थे उन्हें 2 जून की रोटी मिल सके, ये जरूर हो सकता है। उज्ज्वला जो योजना है सरकार का, प्राइम मिनिस्टर का जो है काफ़ी जो है अहम योजनाओं में से एक है, उस पर भी सरकार का फोकस हो सकता है। PM आवास जो सरकार ने खुद कहा था कि सबको जो है छत होना चाहिए, तो जो गरीब तबके के लोग हैं जो बड़ी संख्या में जो हैं उन पर जो है विशेष तौर पर ध्यान दिया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी हम अगर बात करें बंदरगाह को लेकर के तो उस पर विस्तार हो सकता है। रक्षा क्षेत्र में जो है वो बजट को बढ़ाया जा सकता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सरकार इस पर भी ध्यान देगी, खास करके रक्षा क्षेत्र में भी
सरकार का विशेष तौर पर ध्यान रहेगा और इसमें जो है बजट को बढ़ाएगी सरकार, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया की स्थिति है और जिस तरीके से एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं उसको भी ध्यान सरकार रखेगी। सर, आपको क्या लग रहा है, ये डिफेंस सेक्टर की जो बात करी बालकृष्ण ने, हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, और साथ ही साथ एक और सेक्टर हेल्थ केयर सेक्टर, क्या आपको लग रहा है कि इसमें भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और बढ़ाने की जरूरत है, या इसमें भी बजट में कुछ नए प्रपोजल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, या डिफेंस बजट जो है उसको और बढ़ाया जा सकता है? देखिए, भारत की 140 करोड़ की आबादी है। अगर स्वास्थ्य सेक्टर को आप देखोगे, हेल्थ सेक्टर को देखोगे जी, तो उतनी सुविधाएं अभी देश में नहीं है। आपको महानगरों में तो अच्छे हॉस्पिटल मिल जाएंगे जी, लेकिन गांव गराज में जहां गरीब लोग रहते हैं जो अपना इलाज नहीं करा पाते, वहां पे अच्छे हॉस्पिटल हैं, न अच्छे डॉक्टर हैं। सरकार को इस बजट में प्रोविजन जरूर करना चाहिए कि जो पिछड़े हुए एरिया हैं, चाहे किसी भी प्रदेश के हो, देश के कोने कोने में, वहां एक सरकारी हॉस्पिटल और अच्छे क्वालिटी का, हाँ इन्होंने एम्स बहुत बना दिए हैं जी। एम्स जो है करीब करीब हर स्टेट में हो गया है, लेकिन वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया था उसको और फिर मोदी जी ने और आगे बढ़ा दिया। तो एम्स का ज्यादा जगहों पे होना एक लोगों के लिए बड़ा यही फायदेमंद है जी, क्योंकि एम्स वेटिंग लाइन एम्स अगर हम दिल्ली की बात करें तो 6-6 मिनट का 6-6 महीने का वेटिंग पीरियड दिखाते हैं। अभी भी ऐप में जाएंगे 2-2 साल का, आप कैसी बात कर रहे हैं जी, 2-2 साल का जो है, अगर आपको सीटी स्कैन कराना है या MRI कराना है तो 8 महीना 10 महीने के नीचे समय नहीं है एम्स में। तो इस जैसे एम्स है, एम्स में इनको हेल्थ सेक्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट को इनको चाहिए सरकार को कि इसमें इतनी कैपेसिटी बढ़ा दे कि जो वेटिंग है वो खत्म हो जाए। अब कोई एकदम बिल्कुल मरा पड़ा है, अब उसको आप बोल दो कि तुम्हारी 4 महीने बाद वेट आएगा टाइम, तो 4 महीने तक वो किस तरीके से वेट करेगा। तो हेल्थ सेक्टर में सरकार को ज्यादा से ज्यादा इसे आगे बढ़ाना चाहिए और हर स्टेट में एम्स के साथ साथ राज्य सरकारों को चाहिए, केंद्र सरकार जो करे, राज्य सरकारों को भी चाहिए कि हर जिले में उनके सरकारी हॉस्पिटल हैं हर स्टेट के, लेकिन उतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि वहां के डॉक्टर तो प्राइवेट प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। सही बात है, वो ध्यान नहीं देते। तो एक ऐसा बुनियादी ढांचा जो है हेल्थ सेक्टर में इनको खड़ा करना पड़ेगा जिससे गरीब लोगों का इलाज हो सके। अमीर तो प्राइवेट सेक्टर में इलाज करा लेता है लेकिन गरीब इलाज की वजह से मर जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि अब इन्होंने योजना तो लेकर आए थे ना, आयुष्मान भारत योजना भी है, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या ज्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए? अब देखिए, जो गरीब लोग हैं, हेल्थ इंश्योरेंस सरकार को हर गरीब का अपने पैसे से करना चाहिए। उनके पास अगर कोई पूछे कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो उनको पता ही नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। ये तो पीछे आयुष्मान हॉस्पिटल में लागू भी नहीं। आयुष्मान कार्ड इन्होंने बनवा दिया 5 लाख तक, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसका कोई बेनिफिट किसी गरीब को मिल रहा है। जिसकी जान पहचान है उस हॉस्पिटल से, प्राइवेट सेक्टर से, उसको तो बेनिफिट उसको मिल जा रहा है, लेकिन हर गरीब को जिनको ये माना गया कि 5 लाख का हेल्थ उनका इंश्योरेंस है उनको फायदा नहीं मिल रहा है। तो मैं इसको दूसरे तरीके से चाहता हूं सरकार से कि हर गरीब का, जैसे एक मिडिल क्लास का आदमी अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराता है, साल के 10,000-15,000 रुपया देता है, तो उनका कम से कम 5 लाख का न हो, 2 लाख का, 2.5 लाख का रुपए का एक मिनिमम अमाउंट पे, 10 रुपया पे, 100 रुपया पे, 200 रुपया पे करें, जिससे सब लोग इंश्योरेंस में कवर्ड हो और हर गरीब अपना इलाज करा सके। वसीम हैदर के पास एक बार फिर से चलते हैं मुंबई। वसीम, बहुत ज्यादा विपक्षी जो पार्टियां आरोप लगाती हैं MSME सेक्टर को लेकर, आपसे एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे वसीम, लेकिन कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक बार राय सुन लेते हैं। Other countries are relatively slower. We have a democracy. We are friendly. We can be part of global value chains because we have talent, young people such as yourselves. We are relatively innovative, judging by the number of GCCs that are coming. We need to make sure that the ease of doing business for global value chains or to align, that is focused not only by the center, but that action takes place in the states. States should think big. States should think as if they are countries that they are competing with. That would be very useful. The government is also taking the Atmanirbhar Bharat, the manufacturing burst of making in India. We have seen a lot of manufacturing, many companies are also investing in India regarding that. What's the future, and do you think there is going to be a more trust in that regard for the Atmanirbhar Bharat? We have no option.
Manufacturing has to grow from 13% to 20% in the near future. There is no option because jobs are created from agriculture to manufacturing to services. And manufacturing ratio of creation of jobs is almost one job creates 7 indirect jobs. You know, there's logistics, there's a whole host of things that go in. Now we've got some iconic brands that have come in. We've got in Apple, biggest, well-known. Foxconn has come in. If we can get 4 or 5 equally big brands, they bring their value chains along with them. They bring their supply base along with them. That then creates further, let's say, positivity. And it rolls forward. And then it's a matter of just doing it. But again, to make it easy to do business on the ground. तो अभी हमने आपको एक्सपर्ट्स की राय भी सुनाई। वसीम हैदर के पास एक बार चलते हैं मुंबई। वसीम हैदर, एमएसएमई सेक्टर की जो हम बात करते हैं और विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है कि इस सेक्टर को सरकार ने अपने कार्यकाल में खत्म किया है, तो आपकी अगर छोटे कारोबारियों से बात हुई हो, जो माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले जो कारोबारी हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट से? देखिए, छोटे कारोबारी से लगातार हमारी बातचीत हुई है, हमने कई चोरी भी छोटे कारोबारी के साथ मिलकर की है, तो उनका साफ कहना है इस वक्त बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अगर जीएसटी में कुछ रिबेट मिल जाए, साथ ही साथ जो मेक इन इंडिया के तहत जो प्रोग्राम चल रहा है सरकार का, उसमें कुछ चीजें मिल जाए तो हमें काम करने में और आसानी होगी। क्योंकि जिस तरह का बिजनेस इस वक्त है, हमें प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है, हम अपनी चीजें बेच पा रहे हैं, हम चीजें खरीद पा रहे हैं, लेकिन जो प्रॉफिट लेवल है वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके लिए उनको कहीं ना कहीं रिबेट चाहिए, छूट चाहिए, और सरकार से वो छूट की उम्मीद रख रहे हैं। दूसरी चीज ये रही कि बाजार अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो इनको भी उम्मीदें बहुत ज्यादा चलती है, तो बाजार की वजह से इनको उम्मीदें है कि बहुत कुछ अच्छा होगा। देखिए, आप एक चीज और समझिए कि 3 साल बाद रिलायंस ने अपना ब्रेकआउट किया है। आप ये समझिए रिलायंस जैसी कंपनी जो छोटी कंपनियों को बिजनेस देती है, उसने ब्रेकआउट किया है। तो बाजार को लेकर जब बुरी सारी चीजें हुई है, तो ये हुआ है कि छोटे कारोबारी इस वक्त ये चाहते हैं कि कुछ जीएसटी में छूट मिल जाए, कुछ और जो है मेक इन इंडिया के तहत जिस तरह से उनका प्रोग्राम चलता है उसमें कहीं कई बहुत सारी छूटें सरकार ने लेकर बाहर। वसीम, जेपी लोहिया जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनसे ही सवाल करते हैं। सर, अमृतकाल, विकसित भारत, वोट ऑन अकाउंट है आज, क्या आपको लग रहा है क्या आज मिल सकता है? क्योंकि चुनावी वर्ष भी है, कुछ लोक लुभावनी घोषणाएं कुछ कर सकती है वित्त मंत्री, क्या एक्सपेक्ट करे आम जनता इस देश की? निश्चित तौर पर देखिए, भारत के अंदर आज जो सरकार चल रही है वो केवल और केवल गरीबों के लिए समर्पित है। और आज का जो बजट पेश होने जा रहा है, बजट से भारत की जनता को बहुत आशा है, और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आज जो बजट होगा वो गरीबों के हित में होगा। निश्चित तौर पर आज जब देश की जनता आज नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखती है, और नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के लिए जो विकास कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से आज गरीबों को घर मिल रहा है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लोगों को गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, लोगों को घर मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें मेरा यही कहना है कि आज के बजट में गरीबों को, आज का जो बजट रहेगा गरीबों को समर्पित रहेगा, और एक ऐतिहासिक बजट आज ये पेश होने जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। लोहिया जी, वोट ऑन अकाउंट है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि पूर्णकालिक बजट नहीं है, क्या दुविधा भी रहती है सरकार के मन में कि बड़ी घोषणाएं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3-4 महीने के बाद अगर फिर से आप सरकार में आए, नई सरकार बने, किसी के भी नेतृत्व में सरकार बने, उसको आगे की चीज देखनी है, लेकिन एक दिशा निर्देश कि देश को किस दिशा में ले जाना है, उसकी झलक जरूर दिखनी चाहिए बजट। बिल्कुल, देखिए, पिछली सरकारों से इतर होकर के पिछले 9 या 10 वर्षों में मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, जिस प्रकार को देश को आर्थिक संकट से उबारा है, और आज केवल भारतवर्ष में नहीं, आज विश्व में भारत का डंका बज रहा है, इसका पूरा श्रेय भारत की सरकार को जाता है। और भारत की सरकार जिस प्रकार से आज गरीबों को, चाहे आप उसमें देखिए भारत के अंदर जीएसटी का काम रहा हो, भारत के अंदर अपना ऑनलाइन डिजिटल की जो सेवा है वो रही हो, तो इन सबसे आम आदमी तक पहुंचने का सरकार ने काम किया है। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो बजट अब आने वाला है गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ये देखने का बात है। एक विपक्षी पार्टियों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखिए उनका मत भी यहां पे लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है लोहिया जी। विपक्षी पार्टियां बार बार आपके ऊपर आरोप लगाती हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है आपने जो है वो साइडलाइन किया हुआ है। किसान सम्मान निधि 6000 जरूर दे रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों के जैसे इंपोर्ट की अगर हम अब बात करें, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको आपने इंपोर्ट किया है और एक्सपोर्ट पर चीनी, गेहूं, चावल की बात की, उस पर बैन लगाया, मतलब उसको कम कर दिया है। क्या कृषि के लिहाज से और किसानों के लिहाज से इस बजट में क्या दिख सकता है हमें? बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल है। देखिए, विपक्ष का तो हमेशा से आरोप रहा है भारतीय जनता पार्टी पे और मोदी जी की सरकार पे
कोई भी अच्छा काम हा, चाहे पीछे देखिए अब किसानों के लिए कृषि कानून आया था, उस कानून के ऊपर किस प्रकार से होला मचाया। ये बात अलग है कि किसानों को देखते हुए भारत सरकार ने उस किसान कानून को वापस ले लिया, कृषि कानून को वापस लिया, ये बात एक अलग है। लेकिन मोदी जी ने हमेशा गरीब से गरीब और लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक किस प्रकार से देश की सरकार उनको फायदा पहुंचा सके, इसके बारे में सोचा है। जहां तक किसानों की बात है, कृषि की बात है, तो आप देखिए पिछली सरकारों के अंदर किसानों को खाद नहीं मिलता था। आज की जो सरकार है, आज बताइए कहां क्राइसिस हो रहा है देश के अंदर, कहां खाद नहीं मिल रहे हैं। किसान निधि सम्मान सीधी डायरेक्ट आज किसानों के खाते में जा रही है। तो ये अन्य योजनाएं जो हैं बिल्कुल निश्चित तौर पर भारत की जनता और किसानों के लिए तो मोदी जी हमेशा से तत्पर रहे हैं कि देश के अंदर किस प्रकार से हमारा उत्पादन बढ़े, किस प्रकार से आज अनाजों के भंडार देश के अंदर लग रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि लोक लुभावन घोषणाएं जितनी हो रही हैं और जितनी कहते हैं ना रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, फ्री की जो चीजें दी जा रही हैं, मेरा आपसे ये सवाल है, ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो बढ़ेगा, उसके ऊपर बर्डन पड़े? नहीं, आप फ्री में तो जरूर बांट रहे, राज्य सरकारें भी बांट रही है, केंद्र सरकार भी ऐलान कर दे, लेकिन अल्टीमेटली बोझ फिर सरकार के ऊपर ही पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए जो राज्य की सरकार है वो क्या क्या योजनाएं राज्य के जनता के लिए लेकर आती हैं और मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो डायरेक्ट लोगों तक पहुंचती हैं। राज्य की सरकारों की जो योजनाएं हैं वो केवल दिखावे पे ज्यादा चलती हैं और आर्थिक अगर नुकसान की बात देखी जाए तो राज्य सरकारों का भी उतना ही अधिकार बनता है, राज्यों की सरकारों का भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन देश के अंदर अगर आज किसानों की स्थिति की बात करें तो किसान बहुत मजबूत स्थिति में, भारत का किसान आज मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनका लाभ ले रहा है। तो मेरा तो यही मानना है कि अब आज जो बजट पेश होगा वो बहुत ऐतिहासिक बजट रहेगा और सीधा जनता के दिल तक वो बजट उतरेगा। लाल बहादुर जी, हमने बात करी हेल्थ केयर सेक्टर की, हमने बात करी एक और सेक्टर जिस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है क्योंकि उसके बारे में भी आवाजें उठती हैं, वो एजुकेशन का सेक्टर। उसमें आप क्या देख पा रहे हैं इस बजट में? देखिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी है। इसके पहले क्या होता था कि जो बच्चा कॉमर्स पढ़ रहा था तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता था या बैंकिंग सेक्टर में चला जाता था, जो बच्चा MBBS करता था हेल्थ सेक्टर में जाना चाहता था उसमें जाता। लेकिन जो नई पॉलिसी है, नई पॉलिसी में इन्होंने सारे दरवाजे एक ही कोर्स के साथ खोल दिए हैं कि आप आर्ट के सब्जेक्ट लेकर के उसमें कॉमर्स की भी चॉइस कर सकते हो, उसमें आप साइंस की भी चॉइस कर सकते हो। इससे क्या है कि जो बच्चों की बौद्धिक क्षमता है ना वो बढ़ेगी और उनके सामने विकल्प ढेर सारे होंगे कि किस तरफ जाना चाह रहा है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब तक इस देश में हर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो इस देश का विकास उच्च गति से नहीं होगा। आज अशिक्षा बहुत है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जो गरीब के हैं वो स्कूल नहीं जाते, वो स्कूल जाते ही नहीं, वो क्योंकि जो है उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है और सरकार द्वारा संचालित स्कूल इतना नहीं है जहां हर गरीब का बच्चा जाकर के शिक्षा ले सके। तो इसके लिए इनको चाहिए गांव जो है शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और हर गरीब से अमीर से लेकर के, अमीर तो अपने बच्चों को पढ़ा लेता है लेकिन गरीब नहीं पढ़ा पाता। गरीब इसलिए नहीं पढ़ा पाता, वो धनाभाव नहीं पढ़ा पाता क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा है, वो बेचारे दे नहीं सकते। तो जो सरकारी स्कूलों को पूरे देश में इतनी ज़्यादा संख्या में इनको बनाना चाहिए कि हर आदमी शिक्षित हो और इनका लक्ष्य होना चाहिए कि देश का हर बच्चा स्कूल जाए, देश का हर बच्चा, हर नौजवान शिक्षित हो। जब ये हो जाएगा तो देश की तरक्की तो अपने आप चल ही रही, बहुत अच्छी चल रही मोदी जी के नेतृत्व में। और मैं समझता हूँ आगे बहुत समय अभी है मोदी जी को और देश को बहुत आगे तक ले जाएंगे। दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है तो उसके पीछे केवल और केवल मोदी जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके पहले भी सरकारें आई, इसके पहले भी प्रधानमंत्री होते थे। तो इससे पहले तो प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री भी हुआ करते थे। अर्थशास्त्री देश का जो है इतना बड़ा अर्थशास्त्री जो है 2 टेन्योर 10 साल तक प्रधानमंत्री रहा लेकिन देश को इकोनॉमी को ठीक नहीं कर पाया जी। और मोदी जी ने 10 सालों में देश के इकोनॉमी को बहुत। चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत आखिर कहां से हुई। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए सारा समय।